Good morning, students. I am Neelam, your maths teacher from JPS Academy, Asant. As you know, all students, that we completed our chapter 13, which was practical geometry. And today, students, we are going to start our new chapter, and the chapter name is Algebra, chapter number 5 of maths book. Students, today we will introduce with the name of the chapter and then we will discuss the basic concept of this chapter. Students, firstly, the name of the chapter is algebra. So, what is algebra? Algebra is a branch of mathematics, or clearly you can say that it's a type of mathematics. Students, in which we will deal with the rules and the symbols and manipulate those symbols. Now question is, what type of symbols? Symbols can be quantities, variable, like percentage. So students, many type of symbols or rules we will deal in this chapter. And students, previous chapter was practical geometry. Chapter 9 was basic geometrical ideas, and chapter 10 was elementary shapes. So students, that time I said to you that these chapters are the part of the geometry portion. So students, maths have many branches like geometry, and chapter number 14, data handling is a branch of mathematics, statistics branch. So students, this algebra is also a branch of mathematics in which we will deal with the rules and the symbols. So students, जिस तरीके से आपने ज्योमेट्री चैप्टर्स को डिस्कस किया, दैट वाज अ पार्ट ऑफ जियोमेट्री पोर्शन. एंड स्टूडेंट्स, डाटा हैंडलिंग चैप्टर स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच में से था. उसी तरीके से आज हम अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे, जो कि मैथ्स की ही एक ब्रांच है, जिसमें हम बहुत सारे रूल्स और सिंबल्स को डिस्कस करेंगे. वो सिंबल्स कुछ भी हो सकता है, कोई क्वांटिटी हो सकती है, कोई वेरिएबल हो सकता है. सो स्टूडेंट्स, now I am going with the definition, and the first definition is of variables. So let's come with the introduction and basics of this chapter. Students, the numbers are represented by letters, such as letters means English alphabetic letters: X, Y, Z, A, B, C, F, etc. जो इंग्लिश अल्फाबेटिक लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स, यू शुड हैव टू रिमेंबर दैट स्मॉल अल्फाबेटिक लेटर्स दैट आर कॉल्ड वेरिएबल्स. एंड यू कैन से दीज आर द लिटरल नंबर्स. आप इनको क्या बोल सकते हो? लिटरल नंबर्स भी बोल सकते हो. नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन द सेकेंड डेफिनेशन, कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होता है? अ सिंबल विद द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू. एक ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है, कॉल्ड अ कांस्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 0, 1, 2 एटसेट्रा, कोई भी नंबर हो सकता है वो. और वेरिएबल्स में कोई भी अल्फाबेटिक लेटर हो सकता है, एटसेट्रा वर्ड आई यूज्ड. सो स्टूडेंट्स, अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू जिस सिंबल के पास होती है, दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट. सो नंबर्स जो होते हैं 0, 1, 2, दीज ऑल आर कांस्टेंट्स बिकॉज दे हैव फिक्स्ड वैल्यूज. एंड स्टूडेंट्स, with the help of variables and constants, we will deal with the rules, or you can say that formulas. और rules को हम deal करेंगे इस चैप्टर में.
बट विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, इन दोनों की हेल्प से. एंड स्टूडेंट्स, रूल्स एंड फॉर्मूला we can perform but with the help of operations also. And the 4 basic arithmetic operations are addition, subtraction, multiplication and division. These can be performed for writing rules and formulas. So students, there are 2 basic definitions are variables and second one is constant, which have fixed value that are called constants, and the numbers or symbols are represented by the letters, alphabetic letters, that are called variables. Now students, come to the first topic of this chapter, and the topic name is matchstick pattern. First topic is pattern. So students, we will discuss this topic with the help of exercise questions. So students, let's come on the first topic of this chapter with the help of exercise questions. And students, now we are going to start exercise 5A, and the question number 1 is find the rule which gives the number of matchstick. आपको रूल फाइंड करना है which gives, जो देता है the number of matchsticks. मैचस्टिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? माचिस की जो तिल्ली होती है उसको हम मैचस्टिक्स बोलते हैं. माचिस की तिल्लियों के नंबर आपको देगा. रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न्स, और हमें क्या बनाने के लिए? मैचस्टिक पैटर्न्स बनाने हैं. सो स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है? रूल. सो स्टूडेंट्स, आपको किसका यूज करना है? मैचस्टिक्स का यूज करना है, और उसकी हेल्प से आपको रूल फाइंड करना है, जिसे हम कौन सा पैटर्न बोलेंगे? मैचस्टिक पैटर्न्स. सो ए पार्ट इज अ पैटर्न ऑफ लेटर एच. एच का पैटर्न बनाना है हमने मैचस्टिक की हेल्प से, और एक हमें शो किया हुआ है कि वो एक पैटर्न कैसे बनाया. बी पार्ट में एल शेप का पैटर्न बनाना है मैचस्टिक से, और सी पार्ट में एम शेप का पैटर्न बनाना है. सो स्टूडेंट्स, पैटर्न फॉर्म होगा जो भी, उसके लिए हमें रूल फाइंड करना है. क्या रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा कि ये पैटर्न्स फॉर्म हो जाएं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ए पार्ट, अ पैटर्न ऑफ लेटर एच एज. आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, इस तरीके से फर्स्ट मैचस्टिक का यूज किया है, फिर सेकेंड मैचस्टिक का यूज हुआ है, और ऐसे भी फिर थ्री मैचस्टिक को यूज करते हुए एच फॉर्म हुआ है. सो स्टूडेंट्स, मुझे इसके लिए क्या फाइंड करना है? रूल फाइंड करना है. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बनाया? आपको एक टेबल फॉर्म करनी है. टेबल फॉर्म से हम इसका जनरलाइज्ड रूल फाइंड करेंगे. आप रूल बोल सकते हो, आप फॉर्मूला भी बोल सकते हो इसको. सो स्टूडेंट्स, लेटर एच है. एच लेटर को कैसे बनाया? 3 मैचस्टिक्स की हेल्प से. तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितने यूज हुए? 3. अब हम अगर 2H बनाएं तो स्टूडेंट्स 1H तो ऐसे बना हुआ है, तो दूसरा H बनाना है तो अलग से. तो ये वाली तो मैचस्टिक हमें दोबारा लगाने की जरूरत नहीं. जो हमारी ये एक मैचस्टिक ये वाली है, ये ही सेकंड वाली का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगी. तो हमें एक अलग से दूसरे H के लिए कोई अलग से मैचस्टिक लगाने की जरूरत नहीं है. ये एक कॉमन मैचस्टिक हो जाएगी. सो स्टूडेंट्स, 1 मैचस्टिक, देन मैंने लगाई सेकेंड मैचस्टिक, और फिर मैंने लगाई थर्ड मैचस्टिक, ये लगाई मैंने फोर्थ, और ये वाली मैंने लगाई फिफ्थ. तो कितने मैचस्टिक यूज हुए? 2H बनाने के लिए 5. अब 3H बनाने के लिए 1 2 3, और फिर ये अगले H के लिए कॉमन हो जाएगी ये वाली मैचस्टिक, ये 4, और ये वाली 5, और थर्ड वाले H के लिए ये कॉमन हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी 6, ये 7. और 4H बनाने हो तो 1 2 3, ये 4, ये 5, ये अगले H के लिए कॉमन हो गई, ये 6, ये 7, और ये वाली मैचस्टिक अगले H के लिए कॉमन, और फिर हमें ये बनाना पड़ा 8, और ये 9. सो स्टूडेंट्स, यहां मैचस्टिक यूज हुए 9. अब मुझे क्या फॉर्म करना है? रूल बताना है मैचस्टिक पैटर्न्स के लिए. स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो
जितने भी मैस्टिक यूज हुए ये सभी ऑड नंबर हैं, 3, 5, 7, 9, है ना। सो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, क्या मैं इस 3 को इस तरीके से राइट कर सकती हूँ, 2 into 1 + 1, बिकॉज कोई भी डायरेक्ट रूल नहीं फॉर्म हो रहा है। क्या कोई भी टेबल फॉर्म हो रहा है कि 3 1 जा 3, 3 2 जा तो 6 होता है, फिर 7 भी आ रहा है, तो डायरेक्ट कोई भी रूल यूज नहीं हो रहा है। तो मैंने रूल बनाने की कोशिश कर रही हूँ स्टूडेंट्स। कैसा रूल बनाना है हमें, मैं बना सकती हूँ 3 को राइट कर सकती हूँ 2 1 जा 2 + 1, 3 हो जाएगा। 5 को कैसे राइट कर सकती हूँ, 2 2 जा 4 + 1, 2 2 जा 4 + 1 करूंगी क्या आ जाएगा 5। इसी तरीके से 7 के लिए 2 3 जा 6 + 1 7, 2 4 जा 8 + 1 9। सो स्टूडेंट्स रूल क्या फॉर्म हुआ आप देख रहे हो, 2 2 2 2 2, ये 2 सभी फिक्स है, प्लस 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 का सिंबल भी फिक्स है, 1 1 1 भी फिक्स है। वेरी कौन कर रहा है, चेंज कौन हो रहा है, जो मल्टीप्लाई के साथ है नंबर 1, फिर आ गया 2, फिर आ गया 3, फिर आ गया 4। तो स्टूडेंट्स जहां चेंजेस आ रहे हैं वहां हम किसका यूज करेंगे, वेरिएबल का, 1 2 3 4, बिकॉज ये मैंने पैटर्न बनाया 1H के लिए, 2H के लिए, 3H के लिए, 4H फॉर्म करने हो। इसी तरीके से आप एनी नंबर ऑफ H यू कैन फॉर्म। और स्टूडेंट्स वहां से आप क्लियरली इजीली आप एक रूल की हेल्प से आप वहां डायरेक्टली और बहुत जल्दी बता सकते हो कि कितने मैस्टिक यूज होंगे। तो अगर एक H बनाना है तो यहाँ 1 आ रहा है, अगर 2H बनाना है तो यहाँ 2 वेरी कर रहा है, 3H फॉर्म करने तो 3 आ रहा है, अगर 4 बनाने हैं तो 4 आ रहा है, और ये वाला 2 और ये वाला 1 सबके साथ क्या आ रहा है, सेम। तो स्टूडेंट्स मैंने जहां भी चेंज हो रहा है 2 into यहाँ क्या यूज कर लूंगी, n + 1, ये बाकी सभी सेम है। सो रूल क्या बना, हमें 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2n। सो स्टूडेंट्स रूल क्या हो गया, 2n + 1। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स अब आपको अगर मैं बोलूं कि आप मुझे 10H बना के दिखाओ तो हमें क्या करना है, 2 एज इट इज, n के प्लेस पे क्या ले लेना है 10, बिकॉज अगर हम 1H बना रहे हैं तो यहाँ 1 आ रहा था, 2H बनाया था यहाँ 2 आया था, 3 के साथ 3 और 4 के साथ 4। इसी तरीके से अगर मुझे 10H बनाने हो तो 2 into 10 20 और +1 करूंगी तो 21, तो मतलब मुझे कितनी मैस्टिक्स की नीड पड़ेगी, 21। So students, this is the generalized rule for the pattern letter H with the help of matchsticks. So students, B and C parts you will try yourself. Okay? Thanks and have a nice day.